Hello, friends. A very handsome number of views and likes for my previous video on NAP 2020 inspired me to make yet another video on National Education Policy 2020. Thank you so much for the motivation. I was very fortunate enough to catch up with a session of Shri Ashok Ganguly, former chairman CBSE and a trusted name in the field of education for last so many decades. So today I'll be taking some of the references in this video on NEP 2020 from his session. So friends, NEP 2020 can be divided into 8 chapters. To begin with, the first chapter is ECCE, that is Early Child Care Education Program. The second is Foundational Literacy and Numeracy Program. The third is Universal Access. Fourth is Curriculum Pedagogy. Fifth is Teachers Inclusive Education. And then Effective Governance, and of course, Regulation and Accreditation. As Shri Ashok Ganguly puts it, 80% of National Education Policy 2020, as far as the content and philosophy is concerned, is the same as the National Education Policy of 1986, National Curriculum Framework 2000 and 2005. But yes, there are some fundamental differences, and today we'll talk of two major fundamental differences, that is between the previous education policies and NEP 2020. The first difference is that it talks about the aim of bringing in the best global education system through local powers. And of course, secondly, there'll be a lot of flexibility. Now there'll be no compulsion, no restriction on the students will be choosing their own path. But one thing which really is really surprising is that there is no mention of private schools in National Education Policy. National Education Policy 2020 में प्राइवेट स्कूल्स का ठीक से विस्तार से कोई जिक्र नहीं हुआ है. ये बहुत अपने आप में एक सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि पहली बात और थी कि 1986 में इतनी प्राइवेट स्कूल्स नहीं थी, लेकिन अब more than 50% of the total number of students in the country are in private schools. Private schools cater to the needs of more than 50% of the students of the entire country. ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझने वाली बात है. अब हम बात करते हैं एनईपी के पेडागोजिकल फ्रेमवर्क की. 10+2 को रिप्लेस किया है. जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि 10+2 को रिप्लेस किया है 5+3+3+4. नाउ देयर विल बी 15 years ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल. इससे एक फ़ायदा, एक एडवांटेज उन बच्चों को होगा, उन स्टूडेंट्स को होगा जो फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, जो विदेशों में अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं. इससे पहले 10+2 में उनका एक साल बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कम पड़ता था, तो वो अब एक ब्रिज कोर्स किया करते थे, तो अब वो ब्रिज कोर्स उनको नहीं करना पड़ेगा. दूसरा एडवांटेज ये होगा कि एक यूनिवर्सली हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे. प्राइवेट स्कूल और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच में एक गैप हुआ करता था, वो ब्रिज हो जाएगा, क्योंकि अब सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में आने से पहले वो 3 years जो फाउंडेशनल कोर्स के हैं और वो उनको करना होगा, सभी स्टूडेंट्स को करना होगा. इससे पहले हम जैसे मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन के नाम से जो 3 years जानते थे, नर्सरी केजी प्रेप या नर्सरी लोअर केजी अपर केजी, वो जनरली प्राइवेट स्कूल्स में होता था. गवर्नमेंट स्कूल्स में ये 3 years का कोर्स जो है वो नहीं होता था. लेकिन अब जो गैप बिल्डअप होगा वो इस तरीके से होगा कि अब सभी स्टूडेंट्स को, ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव टू कंप्लीट दिस 3-year फाउंडेशनल course before they come to class 1, so the learning level of all the students now will be same. दूसरा एडवांटेज ये है कि नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि एक करिकुलम भी सेम हो जाएगा. सभी प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में देयर विल बी सेम करिकुलम थ्रू आउट. सो व्हेन दे विल कम टू क्लास 1, they will be at the same learning
standard, or you may call it a same learning level. किसी स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है या किसी स्कूल में ये पहले पढ़ाया जा रहा है बाद में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा अब नहीं होगा। एक यूनिवर्सल तरीके से काम होगा, एक करिकुलम होगा जिसको कि NCERT उसको फ्रेम करेगी, और वी होप दैट NCERT फ्रेम्स अ क्वालिटी curriculum for our ECCE program, because as Shri Ashok Ganguly puts it, that the Montessori, the preschool education is very poor in our country. तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स हमारे ECCE के प्रोग्राम के इम्पैक्ट्स की और उनके एडवांटेजेस की। अब देखना ये है कि हाउ फार इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। वो सुनने में इट्स रियली साउंड्स गुड, अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कितना अच्छे से हो पाता है ये देखने वाली बात है। दूसरी बात हम करते हैं नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा है कि 6th क्लास का बच्चा क्लास 2nd और 3rd की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं कर पाता है। तो अब ये एक मिशन मोड में एजुकेशन प्रोग्राम को बनाया गया है, जिसमें पूरा एक मिशन इस्टेब्लिश होगा, एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होगा रादर, जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो असर्टेन करेगा, जो इंश्योर करेगा कि 3rd क्लास में आने से पहले जो भी फाउंडेशनल लिटरेसी और जो न्यूमरेसी है वो बच्चों को अच्छे तरीके से आ जाए, और सभी के फंडामेंटल्स जो हैं लिटरेसी के और मैथमेटिक्स के क्लियर हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी देखने वाली बात ये है कि ये एक दूसरा सरकारी डिपार्टमेंट बन के न रह जाए, बिकॉज दिस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी हेडेड बाय टॉप एजुकेशनिस्ट, तभी इसके साथ जस्टिस हो पाएगी। अदरवाइज ये फिर से एक सरकारी महकमा बन के रह जाएगा, ऐसा एप्रीहेंशन हम सबके दिमाग में ज़रूर आता है कहीं ना कहीं। So now, before winding up the video and not making it very long, आज मैं ECCE फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो चैप्टर्स की बात कर रही थी, तो अपनी बात को पूरा करने से पहले एक जानकारी बहुत अच्छी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, और वो ये है कि 11th और 12th में अब ECCE प्रोग्राम को हम ऑप्ट कर सकते हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स 11th एंड 12th में ECCE प्रोग्राम को एज अ स्किल सब्जेक्ट स्किल को एज अ स्किल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। यस, ये 50 ये जो पेपर होगा उनका वो 50 मार्क्स प्रैक्टिकल और 50 मार्क्स थ्योरी का होगा। उनकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होगी वो स्कूल के ही जो प्री प्राइमरी सिस्टम होगा वही उनका लैब की तरह उसको काम में लिया जाएगा। सारे प्रैक्टिकल लेसन्स उनको वहीं दिए जाएंगे। CBSE बोर्ड से बराबर ट्रेनिंग्स होंगी, और हम लोग किसी फैकल्टी को बाहर से भी बुला सकते हैं। इसमें करियर ऑप्शंस के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ECCE को ऑप्ट करने से हमारे कितने करियर ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाते हैं, और कहाँ कहाँ हमको जॉब्स प्रोवाइड हो सकती हैं, इन सब के बारे में और दूसरे लेसन्स के बारे में फिर से मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी आपसे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।